Hello students. So today we will discuss about the next topic. That's your topic 4 of your second chapter. That's electrical capacitance and capacitor. So as from the name, it is clear what is the meaning of capacitance. So what is a capacitance? So capacitance of a conductor is a term, or you can say it is a property which is related with the ability to store the charge. It is related, capacitance of any conductor is related to its the ability to store charge or energy. You can say if the charge will be stored, then you can say the electrical energy will be stored of a conductor. किसी भी कंडक्टर का की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो कंडक्टर अपने अंदर एनर्जी और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं. राइट. देखिए कैसे जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था. सो वेन एवर ए कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, सो जब भी हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं, राइट, एंड इट हैज सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उस चार्ज की वजह से उस पर कोई एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. से मान लीजिए क्यू चार्ज है, राइट, और वी पोटेंशियल है उसका. तो एज वी इंक्रीज द चार्ज, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है. ये हमने ऑब्जर्व किया था कि V जो होता है आपका Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम ये कह सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है. सो इफ ए चार्ज Q गिवन टू द कंडक्टर इंक्रीजेज, इट्स पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज by a value, say it is said to be your V. So we can say this charge Q is directly proportional to your V. Q जो हमारा चार्ज है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जैसे जैसे Q इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका V भी इंक्रीज करेगा. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट डाउन दिस Q इज इक्वल टू दिस प्रोपोर्शनलिटी. इस जगह पर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं. से K इज सेट टू बी योर वन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, any of your constant of proportionality, and this K constant of proportionality is said to be your C. What's your C? C is said to be your capacitance. Capacitance of a conductor, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वही है वैल्यू हमारे पास C होती है. तो वी कैन राइट डाउन Q इज इक्वल टू सी वी. फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ C, that C will be equal to Q by V. So we can write down the next definition, or you can say another definition of capacitance. The capacitance can be defined as numerically equal to the charge divided by volume, electrical potential. Right. किसी भी चार्ज को एक चार्ज रिक्वायर्ड जो होता है हमारे पास में टू रेज इट्स पोटेंशियल is said to be my capacitance. If V is equal to 1 volt, then C is equal to Q. Right. So we can write down the capacitance is the ratio of your charge given to the conductor to the rise in its potential. This can be written as the charge given to a conductor to the rise or increase in potential. So it can be defined as the ratio of charge to the rise in your potential. From here we can write down the capacitance can be defined as you can say the capacitance of a conductor is numerically equal to the charge required to raise its potential as unity. If we have to increase the potential as 1 volt, then how much the charge is required, right? So that is said to be my capacitance C. यूनिट देखिएगा C इज इक्वल टू Q by V. हम कह सकते हैं इट्स योर कूलम पर वोल्ट.
but this coulomb per volt is said to be your farad. farad एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पे बेसिस हम कह सकते हैं दिस इज said to be your farad. So 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. और अगर हमें 1 farad की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम बस 1 farad देखिए we can write down if V is equal to 1 volt and Q is equal to 1 coulomb, then C is equal to 1 farad. From here we can write down 1 farad is the capacitance of a conductor which required to raise the potential of 1 volt for a 1 coulomb charge. 1 coulomb चार्ज के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज करने में जो भी कैपेसिटेंस होता है उसको हम 1 फैरड कहते हैं, राइट. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर 1 फैरड एंड दिस कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी. ये हमेशा आपकी एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, नेवर इट्स वैल्यू सेट टू बी योर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं और ये आपके हमेशा पॉजिटिव होती है और स्केलर क्वांटिटी है, राइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला, what is the dimensional formula? This C is equal to Q upon में V. Q होता है आपका I into T यानी एम्पियर सेकेंड A T, right, and this V can be written as W upon में Q. So W up into में Q ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन W भी लिख सकते हैं आप इसे. तो Q होता है आपका A into T यानी A into T का स्क्वायर और W आपका वर्क डन होता है, वर्क डन की होती है ml स्क्वायर T-2. जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए m की पावर ऊपर जाएगी, m पावर -1, l की पावर -2, t की पावर माइनस ये 2 है ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी और t की पावर 2, t की पावर टोटल हो जाएंगी 4 और a की पावर 2. a इज डिनोटिंग टू एम्पियर. दिस इज माय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, राइट. So this is the capacitance. What is the capacitance? Capacitance of a conductor is said to be, it is the property which is related with the store of energy, or you can say store of charge in it. Its unit is your farad. 1 farad is equal to 1 coulomb per 1 volt, and C is equal to Q by V. Numerically, it's your ratio of your charge per potential increase, your raise in the potential. And its dimensional formula is your m-1 l-2 t power 4 a power 2, right. So the next is your capacitor. So what is a capacitor? Capacitor, simply it is a device which has its capacitance. Or what is the capacitance? Ability to store the energy. एक ऐसी डिवाइस जो हम डिवाइस यूज करते हैं, जो कैपेसिटेंस हमने पढ़ा किसी कंडक्टर के लिए, उसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, सॉरी कैपेसिटर कहते हैं. सो व्हाट इज ए कैपेसिटर? ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, इज ए डिवाइस और इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग large amount of charge, hence electric energy amount of charge, or you can say hence electric energy in a स्मॉल और यू कैन स्मॉल स्पेस, छोटी सी जगह, यानी कोई ऐसी डिवाइस जिसमें स्मॉल स्पेस रखते हुए हम लार्ज अमाउंट को चार्ज और यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. ऐसी डिवाइस यानी ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं. कैपेसिटर एक जो जनरली होता है, कैपेसिटर जनरली कंसिस्टिंग ऑफ द 2 सेपरेटिंग कंडक्टर्स से, इट में भी और कंडक्टिंग प्लेट्स हो सकती है, वो किसी भी क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, which are separated by a insulating medium, right.
तो दिस इज जनरल, you can say, construction of a capacitor. It is a system of two conductors separating by a insulating medium, right? And oftenly the two conductors are charged by connecting them to the two terminals of the battery. हम उनके जो दो टर्मिनल्स बैटरी के साथ कनेक्ट करके उस कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली किसी भी एसी सप्लाई से भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। मीन्स किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से हम उसको चार्ज कर सकते हैं, राइट? तो नाउ ये जो कैपेसिटर होते हैं, व्हाट आर इट इज, यू कैन से इट इज जनरली consist of a system of two conductors which are separated by an insulating medium. किसी भी एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड होते हैं, वो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं जनरल, राइट? व्हाट इज द प्रिंसिपल, हाउ कैपेसिटर वर्क? सो कैपेसिटर वर्क ऑन द फैक्ट that the capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged conductor connected to the earth. तो जब भी हम सिंपल से, हमने ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल इसका, जब भी हम कोई भी एक चार्ज कंडक्टर को, यानी चार्ज कंडक्टर को दूसरे अनचार्ज कंडक्टर के साथ में या कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है, वहां पर एक चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। वही चार्ज जो ट्रांसफर, वो आपका क्या हो जाता है, उसमें आपका वो चार्ज आपका स्टोर हो जाता है। सो दैट स्टोर्ड चार्ज इज सेड टू बी, वही कैपेसिटेंस कहलाता है हमारा, और यही आपका प्रिंसिपल है। सो वर्किंग of a capacitor is based on the fact, इस फैक्ट पे आपके वर्क करता है, that the capacitance of an insulated कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज कर जाता है कंसिडरेबली, ज़्यादा नहीं बट इट्स ए कंसिडरेबल वैल्यू में इंक्रीज कर जाता है, बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ, जो कि अर्थ से एक आपका कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपकी जो भी घर में आप यूज़ करते हैं डिवाइस, उसमें हम कैपेसिटर्स यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा, राइट? सभी स्टूडेंट्स हमने, जैसे फ़ैन होता है आपका घर में, राइट? उसमें बहुत ही इजीली फ़ैन, और जो ट्यूबलाइट्स होती है, जो आप लॉन्ग ट्यूबलाइट देखते थे, उनमें ये बहुत ही कॉमन सा आपको इजीली बाहर से ही दिखाई दे जाता है। फ़ैन होता है, उसमें कैपेसिटर होता है वाइट कलर का, राइट? उसकी वैल्यू होती है हर फैन में वो लगा, वही आपका कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब आप उसमें वो आपको सप्लाई देता है। तो इससे हमारा जो फ्लो रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। जैसे फैन है, फैन एक एसी डिवाइस है, मूव कर रही है, एसी फ्लक्चुएटिंग होती है, राइट? मींस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, साथ ही उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। एक साइकिल में इफ वी कंप्लीट द वन साइकिल, ठीक है, ये टू टाइम्स, 2 बार जीरो होती है। लेकिन हम जब फैन को रन करते हैं तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि फैन जीरो होने के मीन्स क्या है कि फैन को स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन फैन ऐसे स्टॉप नहीं होता है। तो वहां पर हमारा कैपेसिटर वर्क करता है।
सो कैपेसिटर क्या करता है, जो चार्ज होता है एक्सेस चार्ज को स्टोर कर लेता है, और जब एसी की जो वैल्यू डिक्रीज होती है, स्लोप उसका डिक्रीज होता है, उस समय पे वो अपने चार्ज को रिलीज कर देता है। जैसे फिर से नेक्स्ट साइकिल में इंक्रीज होती है तो फिर से उसका जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसको स्टोर कर लेता है और फिर से वो रिलीज कर देता है। सो दिस फंक्शन कंटिन्यूज ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ योर फैन ऑन और एनी एसी डिवाइस जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं। तो सभी में ये लगा होता है कैपेसिटर, आप उसमें देख सकते हैं, राइट। अब देखिए हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की और उसके कैपेसिटेंस की। हमारे सिलेबस में ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज ए सिंपली अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स विच आर insulated by any medium which are separated by an insulated medium। ठीक है, तो दो कंडक्टर कोई भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। सो उसमें से एक कैटेगरी हमारी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो व्हाट आर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? सो व्हेनेवर द टू प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने पैरेलली रखी होती हैं, राइट, and it is filled with any of the insulating medium or any other medium, right? So this is said to be my parallel plate capacitor. These plate may be of any cross section। ये क्रॉस सेक्शन कोई भी हो सकता है, ये अभी हमें नहीं पता, राइट। दिस में बी योर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दिस में बी योर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और वट एवर। तो किसी भी तरीके की क्रॉस सेक्शन की प्लेट हो सकती हैं, बट दीज द टू प्लेट्स आर सेड टू बी योर प्लेस्ड विद ईच अदर। सो इफ the conductors used in a capacitor are plain sheets होती हैं, plain, the capacitor are known as parallel plate कैपेसिटर, राइट। जो प्लेट्स मतलब प्लेन शीट जो होती हैं, ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए से दो प्लेन शीट्स हैं, so this is my one of and this, right? So this will be have a considerable charge of positive type, same it will have a negative charge। So these, say for example, these both the plates are separated by a distance d is the distance between both the plates। So since they have the charge, an electric field will be set up E from positive to negative। और आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको पढ़ाया था, जब भी दो प्लेट्स या दो प्लेन शीट एक दूसरे के सामने रखी होती हैं, राइट, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो मीन्स बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका मैक्सिमम होता है, और आउटसाइड चाहे किसी भी साइड हो, इधर या इधर, यहाँ पर दोनों जीरो हो जाते हैं जब ये चार्ज आपके किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स अनलाइक होते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो इन बिटवीन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, नेग्लिजिबल और जीरो होता है, और आउटसाइड आपका मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर अनलाइक होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, तो बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट यहीं पे होगा, बाहर जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा या जीरो रहेगा। सो राइट, सो ये जो आपकी दोनों प्लेट हैं ये यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, तो मीन्स दोनों पे जो चार्ज है वो आपका Q है। Q इज द टोटल चार्ज इफ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। सिग्मा अगर हमारी चार्ज डेंसिटी है, राइट, तो सिग्मा दो प्लेट हो गई आपकी, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा P आप कह सकते हैं, इट्स योर प्लस Q बाई ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सिग्मा नेगेटिव आपकी दूसरी प्लेट नेगेटिव प्लेट पे हो गया आपका प्लस Q बाई ए से, where A is equal to area of cross section of plates।
या प्लेन। ये आपका जैसे मैंने आपको बताया इनका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर है का लेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो आप सर्कुलर का एरिया लेंगे, राइट। सो हाउ मच द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी प्लेन शीट, हाउ मच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू प्लेन शीट, ड्यू टू प्लेन शीट। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस थ्योरम एंड इट वाज योर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड हेंस हाउ मच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट की वजह से देखिएगा अगर इसमें हम देखें ये पॉजिटिव है तो इस पर रिपल करके ये डायरेक्शन लगेगा और ये नेगेटिव है तो इस पर रिपल करके ये डायरेक्शन लगेगा। तो अगर हम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और डायरेक्शन क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अगर हम इसको नेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दोनों का सम अप हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका ई, दैट इज योर दोनों का आपका यानी ई पी, ये ई पी और यहाँ पर ई एन दोनों इक्वल हैं पॉजिटिव प्लेट प्लस नेगेटिव प्लेट का, एंड विच इज़ योर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज, रिमेंबर अगेन, दिस इज इन बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में। आउटसाइड जीरो होगा क्योंकि आउटसाइड जब अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, राइट, तो इसकी देखिएगा प्लस प्लस की वजह से रिपल्सिव लगेगा बाहर, और ये प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्टिव लगेगा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये जीरो हो जाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको, उसमें क्वेश्चंस भी करे थे आपने, राइट, वहीं से आप। तो दिस इज योर सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमें। तो नाउ इफ वी नो द ई इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन वी फाइंड आउट द वी? यस, वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल because we have the relation between E and V. And what's the relation? Relation said to be your V is equal to E into में D. D is the distance, or you can say E is equal to V by D. ये हमारे पास में होता है V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी, ई इंटू में डिस्टेंस आपका डी आर आता है, वहीं से आया है ई इंटू डी। तो ई है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। दिस इज माय V वैल्यू। V निकाल लिया हमने। नाउ कैपेसिटेंस, व्हाट्स योर कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में V, एंड दिस इज योर Q अपॉन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। दिस सिग्मा कैन बी रिटन एज this Q upon में sigma can be written as Q by A. So A upon A into epsilon naught into D. This Q will be cancel out, A epsilon naught ऊपर जाएगा, so A epsilon naught upon D. So what is the capacitance of a capacitor? Plate capacitor, or you can say the parallel plate capacitor, C is equal to A epsilon naught upon में D. The capacitance of a plane capacitor, or you can say, right, plane capacitor or parallel plate capacitor, C is equal to A epsilon naught upon D, where A is equal to area of cross section and D is equal to distance between plates, and epsilon naught is equal to electrical permittivity of the space, and that free space यहाँ पर क्या है आपका फ्री स्पेस अभी आपका, तो एप्सिलॉन नोट है। अगर कोई और मीडियम हम फिल कर देंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन लेंगे, तो यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। आप कह सकते हैं कि यही हमारा फॉर्मूला है जिस पे आपको न्यूमेरिकल है असाइनमेंट में भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ आर कैपेसिटेंस for parallel plate capacitor, which is equal to A epsilon naught upon में D. Right. Now, how much the energy is said to be stored in a capacitor? तो हम next derivation है आपका energy stored
in a capacitor. How much the energy is stored in a capacitor? Say for example, there is a capacitor having initial charges, मान लीजिएगा इस पे Q डैश है, इस पे प्लस Q डैश, इस पे माइनस Q डैश है, राइट। अब ये नेगेटिव प्लेट हमारी, हमने एक स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करा दिया उसको, से दैट इज सेट टू बी योर डेल्टा क्यू, और यू कैन से डी क्यू डैश। तो डी क्यू डैश है तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसमें से डी क्यू डैश आपका माइनस हो गया, और जिसको हम यहां से यहां तक ट्रांसफर करा रहे हैं, और वो ट्रांसफर कराने में हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। जब भी हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके जाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन, हाउ मच दिस वर्क डन इज सेट टू बी योर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, से V डैश इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जब हम ये कर रहे हैं V डैश एंड इनटू में डी क्यू डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V डैश? V है आपका चार्ज है आपका Q डैश, अपॉन में कैपेसिटेंस है आपका C, सो V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन में C। आफ्टर दिस ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑब्टेन से final charge is your plus q and this obtain a final charge of minus q। हमने जो चार्ज ट्रांसफर किया उसके बाद में इस पे आपका चार्ज आ गया प्लस क्यू और इस पे आ गया आपका माइनस क्यू, राइट। सो दिस इज द फिगर 2 जो हमारा फाइनल, दिस इज फिगर 1। तो फाइनल हमारे पास में आ गया ये। तो हाउ मच द नेट वर्क डन? नेट वर्क डन W, which is equal to integration of dW, it's your Q dash अपॉन में C इंटू में डी क्यू डैश। और Q की वैल्यू कितनी है, मान लिया इनिशियली आपकी 0 थी और फाइनल आपने Q ले ली है, फाइनल वैल्यू हो गई हमारी Q। सो C इज द कैपेसिटेंस विच इज कांस्टेंट। ये तभी चेंज होगा, आपने देखा कैपेसिटेंस होता है वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और इन बिटवीन जो मीडियम हमारा उस पर डिपेंड करता है। इसका चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा था, राइट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था। जब तक हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम डी चेंज डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे या मीडियम चेंज नहीं करेंगे, कैपेसिटेंस चेंज नहीं करता, उससे दिस सी विल बी रिमेन कांस्टेंट एंड इज योर 0 टू क्यू क्यू डैश डी क्यू डैश। तो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन हो गया एक्स डी एक्स का, यानी एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू क्यू। यहाँ जब हम इसकी लिमिट वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस 0। सो हमारे पास में नेट वर्क डन विच इज सेट टू बी योर, दिस नेट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ योर एनर्जी इन द कैपेसिटर। दैट एनर्जी is stored in the capacitor, you can write down, right, this W is equal to Q square upon में 2C, और that is your energy stored, right। this is said to be your energy stored, U is equal to Q square by 2C। सिंस Q इज इक्वल टू, यू नो Q इज इक्वल टू सी बी होता है, तो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला बन जाता है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर हमें Q और V की फॉर्म में निकालना हो तो हम कह सकते हैं हाफ Q इंटू वी, राइट। सो दीज आर 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज ऑफ, आप कह सकते हैं कैपेसिटेंस की, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और कैन से द वर्क डन। If we have to find out the potential energy or energy stored per unit volume which is said to be your, इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, energy density। So this energy density UE, right, this is your energy U upon में volume,
total energy upon में volume. So from here I can write down this half C V square upon में volume. How much the volume by a capacitor? It's your A into में D. और C की वैल्यू होती है हमारे पास में हाफ C होता है आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D इंटू में V स्क्वायर अपॉन में A इंटू D. तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन जाता है. यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज योर U इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे A और A तो कैंसिल हो जाएंगे, तो A से तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन में T स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन में D का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज V by D. You know V by D, that is said to be your E, because V is equal to E into D and E is equal to V upon. So this can be written as half epsilon naught E square, where E is your electric field. Right. So this is my energy stored in a capacitor per unit volume, that is said to be your energy density. राइट. तो ये हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, साथ ही उसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड रही, और उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपका एनर्जी कितनी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना होता है, दैट इज योर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ये हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स को हम अब एक मोर देन वन कैपेसिटर्स एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं. सो देयर आर द टू कॉम्बिनेशंस एज वी नो. इन केस ऑफ रजिस्टर्स में भी हमने पढ़ा है अपने 10th के स्टैंडर्ड्स में भी. तो जैसे हमारे रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम ऐसी यहाँ पर कैपेसिटर भी एक ऐसी डिवाइस है, तो वो भी आपकी सीरीज में कनेक्ट हो सकती है या फिर पैरेलल में कनेक्ट हो सकती है. सो नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. राइट. सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में फर्स्ट आपका से सीरीज कॉम्बिनेशन. सो व्हाट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन? यू नो, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन वी आर कनेक्टेड एंड टू एंड. एंड से एंड आपका कनेक्ट होता है, मींस एक पॉजिटिव से, ठीक है, और फर्दर सेकंड की नेगेटिव से थर्ड का पॉजिटिव.